Hello dear students, in this lecture we will continue our module 1 units and measurement. So in this module we already completed two topics, dimensional analysis and the significant figure. Now we will take third topic, error in measurement. So this is the last topic of this module. After completing this topic we will do some numerical problems. Okay, so let's start this topic, error in measurement. So now first is error in measurement. So error is the difference between the true value and the measured value. True value और measured value का जो difference होता है उसको क्या हो जाता है, error. Now first type of error is called systematic error. So it is a error whose causes are known. Okay, now let's see some causes. So errors due to external factors. It means these errors are due to fluctuation in atmospheric conditions like temperature, pressure, humidity, etc. Second is errors due to imperfection. So these are introduced due to negligence of facts. Okay, next is instrumental errors. So these errors are introduced due to improper designing and manufacturing defects of instrument. Okay, now then personal error. These errors are introduced due to lack of proper care on part of the observer. Now because in case of a systematic error we know the causes, so if we make some corrections, then by making the corrections we can minimize the systematic error. Okay, now next is the random error. So these are the types of error in which the causes are not known. Okay, so what we will do, we will take the number of observations and then we determine the arithmetic mean. Now the mean value should be close to the accurate value. Okay, so this thing we will do in case of a random error. Now next is a gross error. So it is a error arises due to carelessness of observer. Okay, so this type of error is called gross error. Let's see some points. So reading an instrument without setting it properly, taking the observations wrongly without caring for the sources of errors, recording the observations wrongly, using wrong values of the observations in calculations. Okay, now these errors can be minimized only if the observer is sincere and mentally alert. Okay, so these are the types of errors. Now let's see if we take a number of observations. Okay, now when we take number of observation, or I can say when we take on readings of particular experiment, then we classify the errors in absolute errors, relative error and percentage error. Okay, so let's first see absolute error. Now it is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of a physical quantity. Okay, so it is a difference between true value and the measured value. Like if we don't have a true value, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, लाइक लेट्स टेक अ एग्जांपल वेयर वी आर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो कितने हैं, n है, और उनके रीडिंग्स जो है वो क्या है, x1 x2 x3 डैश डैश xn. सो x1 x2 x3 xn आर द रीडिंग्स ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो नाउ वी विल टेक अ मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज रीडिंग्स. तो मीन कितना हो जाएगा इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn डिवाइड बाय n. n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएगी, xm आ जाएगा. ओके, और मैं कह सकता हूँ कि क्या आ जाएंगे हमारे पास मीन वैल्यू. तो ये जो मीन वैल्यू होती है इसी को हम क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू या लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू वैल्यू हमें नोन नहीं है. तो अगर ट्रू वैल्यू नोन नहीं होती है तो जो नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिए उन रीडिंग्स का हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं. और वो जो मीन होता है वो मीन हमारी क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट एरर कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, वी सब्ट्रैक्ट द ऑब्जर्वेशंस और द रीडिंग्स. ओके, वी सब्ट्रैक्ट द रीडिंग्स बाय दिस ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो था एब्सोल्यूट एरर का होता ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी ली है, xm, तो ये xm हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, माइनस x1 कर दिया हमने. अब x1 क्या था, हमारा मेजर्ड वैल्यू थी. तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आ गई अपने पास, xm माइनस x1, और ये मॉड्यूलस का साइन लगा हुआ है. ठीक है, तो और इसको डिनोट किससे किया, डेल्टा x1 से. सिमिलरली सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए निकालेंगे तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xm माइनस x2. ऐसे ही डेल्टा x3 इज इक्वल टू कितना जाएगा, मॉडुलस ऑफ xm माइनस x3.
ओके, और nth ऑब्जर्वेशन के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन। ओके, सो ऑल दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन अ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। हर एक ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है वो हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं सारे ऑब्जर्वेशंस में, अगर हम इसका मीन निकाल लेते हैं तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाएगा इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका मीन निकालेंगे हम तो इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स एम इजिकल टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री डैश 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 प्लस डेल्टा एक्स एन डिवाइड बाय एन। सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो यहाँ पर x कोई फिजिकल क्वांटिटी थी हमारे पास, और उस x जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसका हमने क्या करा, मेजरमेंट लिया। अब मेजरमेंट लेके जो हमने फाइनल रिजल्ट हम देंगे, उस फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, एक तो मीन वैल्यू होगी जिसको कि हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो मेन रिजल्ट आएगा या मेन रीडिंग हमारी जो फाइनल रीडिंग आएगी, वो फाइनल रीडिंग क्या होती है, उस फाइनल रीडिंग में एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और साथ में होती है एरर। ठीक है, और ये एरर जो निकाली वो कितनी है, डेल्टा एक्स एम, जो कि क्या है, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा एक्स एम जो है वो हम पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। सो जो रीडिंग है वो क्या हो सकती है, फाइनल रीडिंग जो हमारी आएगी वो क्या हो सकती है, एक्स एम प्लस डेल्टा एक्स एम या एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स एम, यानी पॉजिटिव में भी ऊपर एरर आ सकती है और नेगेटिव में भी एरर आ सकती है। तो ये जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल रिजल्ट, या ये हमारा जो है फाइनल रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए, जो एक्स फिजिकल क्वांटिटी थी उसके मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर, जो कि क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर तो कितना था, डेल्टा एक्स एम, और एब्सोल्यूट एरर कितना होता है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू relative error. Now what is a relative error? Relative error is a ratio of mean absolute error to mean value. ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या थी, डेल्टा एक्स एम, और मीन वैल्यू को अपन एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स एम डिवाइड बाय एक्स एम, सो दिस इज अ रिलेटिव एरर। नाउ व्हेन आई रिप्रेजेंट अ रिलेटिव एरर इन अ परसेंटेज, देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। सो दिस मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू 100, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, सो दिस डेल्टा एक्स एम डिवाइड बाय एक्स एम इंटू 100, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द percentage error. Okay, now let's see combination of error. So it is a very important topic, combination of error, because in competition exams the number of numericals or the questions comes from this topic. Okay, so combination of error में हम क्या करते हैं, let's we have two physical quantities, दो quantities है हमारे पास A and B. Okay, now when I sum these two quantities the result comes out to be x. ठीक है, दो क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, एक है a और b, दोनों को हमने सम करा, इनको सम करा तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, x. ओके, नाउ विद ईच फिजिकल ईच क्वांटिटी और विद ईच फिजिकल क्वांटिटी देयर इज अ एरर। ठीक है, तो हम लेते हैं कि x के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है, डेल्टा x है, a के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है, डेल्टा a है, और b के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है, डेल्टा b। ठीक है, तो अगर x में डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर है तो उसका फाइनल जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। ऐसे ही a में अगर डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है तो इसका फाइनल जो आएगा मेजरमेंट या फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा है, और b में ऐसे ही b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, नाउ इसको सम करते हैं, हम सम करेंगे तो हमारे पास स्टेप आएगी a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। Now this a plus b is equal to x. Okay, so put a plus b is equal to x and then cancel out this x from this x. So then we will go get delta x is equal to plus minus delta a plus delta b. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को सम किया तो सम करने पर जो हमारा फाइनल जो क्वांटिटी हमें मिली है उसमें जो एरर होगी डेल्टा x, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर थी उनके सम के बराबर। अब जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर के केस में हम मैक्सिमम एरर लेते हैं, तो मैक्सिमम एरर लेने के कारण इस प्लस माइनस में से हम कौन सा साइन लेंगे, ओनली प्लस का। ठीक है, तो डेल्टा x जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, नाउ लेट्स सी डिफरेंस। नाउ इन डिफरेंस वी राइट x इज इक्वल टू a माइनस b। अगेन x के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है, डेल्टा x, तो आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। a के अंदर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा है तो प्लस माइनस डेल्टा है, और b में कितना है, प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे,
So a minus b plus minus delta a plus minus delta b. Now this a minus b is equal to x. Okay, so cancel out this x from this x. Now again we will get delta x is equal to plus minus delta a plus delta b. Again we calculate the maximum error, so we will take only positive sign. सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे तो यहाँ से भी जो डेल्टा x हमारे पास आएगा वो कितना जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. तो चाहे आप समीशन करें चाहे डिफरेंस करें, दोनों ही केस में जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकल के आने वाली है वो फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, सबमिशन होती है. जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है जिन चाहे उन क्वांटिटीज़ का जिनका आप सम कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके, नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट. नाउ वी हैव फिजिकल क्वांटिटी a and b, so when we multiply these quantities the quantity will comes out to be x. x आता है जब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं. a और b फिजिकल क्वांटिटी है. अब ये करते हैं कि x में जो है एब्सोल्यूट एरर वो कितनी है, डेल्टा x, a में कितनी है, डेल्टा a, और b में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा b. तो हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b. देन मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटीज. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई the step comes out to be ab plus minus a delta b plus minus b delta a plus delta a delta b. Now this delta a and delta b is a very small quantity, and when we multiply the small quantities then further a very small quantity will come. So we neglect this term delta a delta b. So when we neglect this term then we will get x plus minus delta x is equal to ab plus minus a delta b plus minus b delta a. Okay, now take x कॉमन. x यहाँ से आप कॉमन ले लें तो x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स. यहाँ पर ए बी कॉमन लेना है इस पूरी स्टेप में से. इस पूरी स्टेप में से ए बी कॉमन लेंगे तो ये ए बी बाहर आएगा तो इधर बचेगा 1. सो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए. ओके, यहाँ पर आप ए बी का जब डिवाइड करेंगे तो बी टू बी कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ए बाई ए आएगा. पहले मैंने वाली स्टेप लिख दी है. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल्टा बी बाई बी. ओके, नाउ दिस ए बी इज इक्वल टू एक्स. Okay, so cancel out this ab from this x. Okay, then step is 1 plus minus delta x by x is equal to 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b. Now cancel out this 1 from this one. So हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, डेल्टा x by x is equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा x है वो डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, और x क्या है हमारा यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर. तो ये जो टोटल रिलेटिव एरर आएगी वो टोटल रिलेटिव एरर किसके बराबर होगी, सम के बराबर होगी. रिलेटिव एरर इन अ इंडिविजुअल क्वांटिटी. जैसे ये ए क्वांटिटी थी, इस ए क्वांटिटी की रिलेटिव एरर अगर अपन निकालें तो कितनी आएगी, डेल्टा ए बाय ए. ऐसे जो बी है उसकी रिलेटिव एरर निकाली जाए तो कितना आएगी, डेल्टा बी बाय बी. और इनका सम अगर कर दें तो टोटल रिलेटिव एरर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी. इसी को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाइड बाय 100. दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अगेन हम मैक्सिमम एरर लेंगे तो मैक्सिमम एरर के केस में हम कौन सा साइन लेंगे, ओनली प्लस का साइन. ओके, सो दिस इज फॉर एरर इन प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी फॉर डिवीजन. नाउ in case of division take x is equal to a by b. Okay, now write x plus minus delta x, then a plus minus delta a, then b plus minus delta b. Now take x as common, so the term is 1 plus minus delta x by x. यहाँ पर ऊपर वाली टर्म से तो a कॉमन ले लें और नीचे वाली टर्म से b कॉमन ले लें. तो ऊपर से a कॉमन लोगे तो आप बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a. नीचे से b कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b. अब जो a बाई b है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के. तो इस a बाई बी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, x, और इस x से इस x को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी है इसको जब आप ऊपर लाओगे तो इसकी पावर कितनी जाएगी, -1. ठीक है, ये जो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी है इसे जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर कितनी जाएगी, -1. तो ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन होता है. ठीक है, जो होता है 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. देन हायर टर्म्स है इसकी, तो फिजिक्स में हायर टर्म्स तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो ये जो आप ध्यान से अगर इसको देखें तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी अपनी पावर कितनी है, -1. तो ये -1 यहाँ आगे आ जाएगी और हायर टर्म्स क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो इस यहाँ पर हमने क्या लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया यहाँ पे. उसके बाद ये टर्म आई हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए,
एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, इनको मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करके ये जो टर्म है डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। रीजन सेम है, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई टू स्मॉल क्वांटिटीज देन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विल कम। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। नाउ कैंसिल आउट दिस 1 to 1, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास वही सेम आएगा जो हमारे पास किस में आया था, प्रोडक्ट में आया था। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इस केस में भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम एरर के लिए कौन सा साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स बाय एक्स आएगा वो फॉर्मूला हमारे पास कितना जाएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बाय बी बाय बी। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर पावर। अब कोई क्वांटिटी है ए और उसकी पावर है पी। ठीक है, कोई क्वांटिटी है ए और उसकी पावर पी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a रेज टू पावर p। नाउ अगेन the absolute error in x is delta x and the absolute error in a is delta a. So we write x plus minus delta x, then a plus minus delta a raised to power p. Now take x common from this term, okay, and then take a raised to a common from this term. तो इस टर्म में से a कॉमन लोगे तो a की पावर p आ जाएगा बाहर। ठीक है, a क्योंकि पूरे की पावर कितनी लगी हुई है, p लगी हुई है, तो यहाँ से पर a को आप बाहर लोगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, p आ जाएगी। ठीक है, तो a की पावर p बाहर आ गई, तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a देन होल पावर p। नाउ अगेन अप्लाइंग द बाइनोमियल एक्सपांशन। तो वापस आप बाइनोमियल एक्सपांशन जब लगाएंगे तो अभी आपको सिखाया है कि हमें तो बस एक ही टर्म लिखनी है, आगे की हायर टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये p आगे आ जाएगा इस तरह से, तो ये बचेगा। और यहाँ पर a रेज टू पावर p क्या है, x है, तो इस a रेज टू पावर p जो x है इससे x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस पी डेल्टा ए बाय ए। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट दिस 1 to 1, सो विल गेट डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाय ए। ओनली पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी है उसकी पावर लगी हुई है तो पावर क्या होती है, वो आगे आ जाती है। तो ये डेल्टा एक्स बाय एक्स हमारे पास इस केस में कितना आ जाएगा, पी डेल्टा ए बाय ए। ओके, सो दिस इज फॉर द एरर इन पावर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। So next you can see that all the formulas। ठीक है, तो एरर इन सबमिशन एंड डिफरेंस, तो सबमिशन और डिफरेंस में फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। पॉजिटिव साइन लेंगे मैक्सिमम एरर के लिए। एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ओके, एंड एरर इन पावर, इसमें होगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाय ए। तो अब जो जेई के एग्जाम है या नीट के एग्जाम है उसमें से ये इनका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, टोटल एरर निकालने के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, टोटल एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, और अगर आपने लिख दी डेल्टा एक्स बाय एक्स, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स हो जाएगा टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उसकी जो ट्रू वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सो ये तो हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर और ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो इसका रेशो जो होता है वो कहलाता है रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वो परसेंटेज में पूछे तो दोनों साइड क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, रिलेटिव एरर है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको कोई क्वांटिटी दी है एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू एंड सी रेज टू पावर आर। तो इसमें आपको डायरेक्ट इसको एक्सपांड करना है। जैसे सबसे पहले देखो आप ए रेज टू पावर पी है, तो पावर आगे आ जाएगी, तो पी, ठीक है, पी डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा क्यू डेल्टा बी बाय बी, फिर हो जाएगा आर डेल्टा सी बाय सी। इसी को आपको परसेंटेज में अगर पूछता है कि भाई परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में क्या करना है, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक, ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे, इन दैट नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन all these formulas. Okay, so thank you.